Good morning, students. Today we will discuss human anatomy and physiology. आज हम ह्यूमन anatomy फिजियोलॉजी करेंगे. होपफुली आप अच्छे होंगे सारे. और ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी करो. ह्यूमन anatomy एंड फिजियोलॉजी. इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स. हम जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे. अनाटॉमी क्या होती है? अनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप्स अमंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो हम बॉडी के जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिलेशन जो स्ट्रक्चर हैं और जो बॉडी में होते हैं, हम उनको अनाटॉमी बोलते हैं. फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस, that how works that how the different parts of the body, for example organ work. मतलब हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ये हमारे लीवर फंक्शन कैसे काम करते हैं उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजी. द बॉडी फंक्शंस कैन नॉट बी the body function cannot be understood without through understanding of the structure that are perform different function. So anatomy and physiology are studied together. हम इनको साथ में पढ़ेंगे. इन नॉर्मल anatomical position the body is upright, head facing forward, hands on the sides, palm open facing forward, and feet are kept together. Anatomical position allow us to describe the position of structures in relation to their surrounding. For example, the heart lies above the diaphragm. मतलब जो हमारा डायफ्राम होता है वहाँ पे जो हार्ट है उससे ऊपर होता है. The anatomical position avoid confusion as to whether the body is lying down or standing up. Body plans क्या हैं? Body plans are imaginary flat surfaces है that pass through the body parts. The major plans are sagittarial plane, frontal plane, transverse or horizontal plane or oblique plans. Sagittarian plane there can be mid sagittarial plane or para sagittarial प्लान. अब ये स्ट्रक्चर में भी आप इसको देख सकते हैं. मिड सैजिटेरियल क्या है? इट इज़ द वर्टिकल प्लेन थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. पैरा सैजिटेरियल प्लेन इट इज़ द वर्टिकल प्लेन लेफ्ट और राइट ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. फ्रंटियल प्लेन इट डिवाइड्स बॉडी इनटू अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस. ट्रांसवर्स or horizontal plane it divides body organ into superior and inferior positions. Oblique plane it is the plane that passes through the body at an angle between the transverse plane and sagittarial plane. आप हम इसको स्ट्रक्चर में भी डिस्क्राइब करेंगे. जो फ्रंटियल प्लेन है ये रहा, ट्रांसवर्स प्लेन, पैरासैजिटेरियल प्लेन, मिड सैजिटेरियल प्लान, ओब्लिक प्लान. आगे इसकी हम करते हैं इंट्रैक्शनल टर्म्स. दे आर द टर्म्स टू यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू अदर्स. सुपीरियर में कौन से आ जाते हैं? द स्ट्रक्चर विच इज़ नियर टू द हेड. जो स्ट्रक्चर जो नियर के हेड में होते हैं उससे सुपीरियर होता है. जैसे कि नोज इज़ सुपीरियर टू माउथ. Inferior क्या? The structure which further from the head. For example, mouth is inferior to nose. ठीक है स्टूडेंट्स. Proximal, the part which is near to the point attachment or point origin of body part. For example, the humerus is proximal to radius. उसको बोलते हैं हम proximal. Distal, the part which is further from the point attachment or origin. For example, the radius or distal humerus.
anterior or ventral, the structure which is near to the front of the body. For example, sternum is anterior to the heart. Posterior or dorsal, the structure which is the structure is near to the back of the body, जो हमारे हार्ट से लेके पोस्टीरियर स्टर्नम तक होता है. मिडाइल, the structure which is near to the midline, for example heart to midile to humerus. Lateral, the structure which is further from the midline or side of the body, for example humerus is lateral to the heart. आगे हम रीजनल टर्म्स हैं इसकी वो करें. रीजनल टर्म्स आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द रीजनल और पार्ट ऑफ द बॉडी. द बॉडी इज split up into main areas, the axial and appendical regions. The axial region refers to the head or vertebral column and trunk, and the appendicular region refers to the pelvic girdle, upper limb and lower limbs. Each area is further divided into this respective region. हम इसको स्ट्रक्चर में आगे ब्रीफ में देखेंगे. ये देखो स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है हमने. ये फर्स्ट में स्पीरियर में दिया गया था जो नोज से लेके माउथ तक होता है. लेफ़्ट राइट, मीडियल, प्रॉक्सिमल, इन्फीरियर नीचे को जा रहा है, स्पीरियर ऊपर को जा रहा है. डायस्टाइल हमने क्या करा था, द पार्ट विच फर्दर फ्रॉम द पॉइंट अटैचमेंट टू और ओरिजिन, जैसे कि रेडियस तो लेके डायस्टाल ह्यूमरस तक. ठीक है. और आगे जो दिया गया है प्रॉक्सिमल में दिया गया पार्ट विच नियर टू अटैचमेंट पॉइंट ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट. फॉर एग्जांपल ली गई थी ह्यूमरस टू प्रॉक्सिमल रेडियस. ओके स्टूडेंट, आगे इसमें दिया गया साइड वाइज में जो इंटीरियर वर्टिकल में दिया प्रॉक्सिमल डायस्टल दिया गया दिखाया गया है, सुपीरियर और इन्फीरियर. आगे इसकी जो कुछ टर्म्स हैं हम उनको थोड़ा सा रीड कर रहे हैं. जैसे कि पहले क्या है, हेड, फ्रंटियल, फोरहेड, ऑर्बिटल, आई, ऑप्टिक, ईयर, नेज़ल नोज, ओरल माउथ, बक्कल, चिक्स होते हैं, मेंटल चिन्ह, सर्वाइकल नेक आ गया, थोरैसिक चेस्ट, मेमोरी ब्रेस्ट बोलते हैं, स्टर्नल अंटीरियर और मिडल चेस्ट के बीच होता है, एम्बिलिकल नेवल, कॉक्सल हिप हो गया, अब्डोमिनल, पेल्विक पेल्विस हो गया, प्यूबिस, एक्सिलरी आरा, मेटम, ब्रांचियल आर्म, अंटब्रांचियल फोरआर्म, एंटोक्यूबिटल फ्रंट एल और एल्बो, फ्रंट एल्बो हो गया उसको बोलते हैं, पल्मिनर पाम, कार्पल रिस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. आप ये देख सकते हैं हेड, सेफेलिक में आई ऑर्बिटल, एयर ऑर्टिक, ये दी गई हैं सभी. इनको थोड़ा सा थॉरली थोड़ा रीड कर लेना, जो मेडिकल टर्म्स में काम आती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, डिजिटल फिंगर बोलते हैं, मैनुअली हैंड, और पोटेनोपेसियस रूलियर काफ, टस एंकल हो गया, पैडल फूट हो गया, हेलक्स ग्रैंड टो, कैल्सिनोम हील, एक्रोमाइल शोल्डर, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉलम, स्पाइन, लंबर, सक्रल, लूटरल बुटक. ये हमारी मेडिकल टर्म्स में दी गई. बाकी आप ये जो दी गई हैं
स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं, आप इनको थॉरली एक बार रीड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, इसमें सेल होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो हमारा इंडेक्स दिया गया है। टिश्यू होता है, टिश्यू में कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे दिए गए हैं, कैविटीज़ हो गया दिए गए हैं, वो हम इसको रीड करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी are organized different level that include the chemical level and molecular level and cellular level, tissue level, system level and organism level. Chemical level क्या होता है? The chemical level includes atoms such as chemical elements हो गए such as carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, calcium, sodium, potassium, magnesium and iron. Molecular level क्या होगा? The two or more chemical elements join to form molecules such as protein, DNA, RNA, glucose and ATP. Cellular level, the cells are the smallest living unit of life. ये हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है फॉर लाइफ। दे आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनाइज। टिश्यू लेवल, द सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यू दैट वर्क टुगेदर। ये एक साथ काम करते हैं, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ते एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दे आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यूज़। ऑर्गन लेवल में क्या होगा? द टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन एंड ऑर्गन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड कंपोज ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। फॉर एग्जांपल हो गया स्टमक, स्टमक में हो गया ऑर्गन लेवल। द टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन्स। आगे दिया गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। द ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ related organ that have a common functions, for example respiratory system, digestive system, skeleton system. ऑर्गन सिस्टम लेवल में जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव जो हमारे फूड पाइप का हो गया, और हमारा हो गया स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन बोन्स आ गए वो होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज्म लेवल, the organism level is the highest level of organization. It is formed all of the system of the body that work together to make a functional organism, the human body. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेल। सेल्स एक छोटा और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। तो ये वो जो वर्क करता है टिश्यू के साथ, तो जो ह्यूमन बॉडी है डेवलप करते हैं फ्रॉम सिंगल सेल टू जायगोट विच इज़ फॉर्म द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। तो इंडिविजुअल सेल्स ने टू सेल्स एंड टू सीन द इंडिविजुअल सेल्स हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, टू बी सीन विद द नेक्ड आई, दे कैन बी सीन इन द मतलब हम इसको लेबॉर्ट्री में और मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, अदरवाइज़ हमको ये नहीं दिखते। जैसे कि सेल्स, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। वही बात होगी, ये मतलब जो अपना सेल है वो टिश्यू है वो टुगेदर वर्क का एक साथ होकर करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड अ जाइगोट। जो ह्यूमन बॉडी है वो डेवलप करता है जाइगोट विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजा। इंडिविजुअल cells are too small to be seen with the naked eye. They can be seen only in the laboratory
when magnified under a microscope. Cell consists of plasma membrane. Cell में plasma membrane होगा और inner to their number of organisms are suspended in the watery fluid called a cytosol. जो उसमें वेटरी फ्लूइड होता है हम उसको साइटोसोल बोलते हैं. द ऑर्गेनेज इंक्लूड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक बॉडी का पावर हाउस होता है. राइबोसोम्स होती है. एंडोप्लाज्मा को होता है. रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस होगा. लाइसोसोम एंड साइटोस्केलेटन. ये दिखा रखा है स्ट्रक्चर में. यहाँ पे केमिकल लेवल होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल, डीएनए, सेलुलर लेवल, स्मूथ सेल्स वाल, टिश्यू लेवल, स्मूथ मसल टिश्यू. और आगे है हमारा ऑर्गन लेवल पे क्या आ गया, स्टमक. हमने पढ़ा था ना ऑर्गन लेवल पे क्या होगा, स्टमक. स्टमक में आगे चला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया हमारा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन. सिस्टम लेवल में हम जो दिया गया है लीवर, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी आंतड़ियाँ बोलते हैं हम उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. डोडेनियम जो जेनियम होता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में आइलम और सेंडिंग क्लोन, अपेंडिक्स और एनस. एसोफेगस होता है. पैनक्रियाज होएगा. पैनक्रियाज को हम जानते हैं जैसे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और जो जब ये प्रोड्यूस करना रहता है तभी हमको डायबिटीज़ हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव covering of the cell. It consists two layer, phospholipids with protein and sugar molecule embedded in them. And the phospholipid molecule have a head which is electrically charged and hydrophilic and is electrically charged to tail which has no charge as hydrophobic. The plasma membrane separate the internal and external environment of the cell and function of the selective barrier. It allows for the selective entry and exit of the substance into the out of the cell. Again, cytoplasma. The cytoplasma contain all cellular constituents present between the plasma membrane and the nucleus. It can be divided into the cytosol and organelles. The cytosol is the fluid portion of the cytoplasma and is the site for all cellular reaction. It constitutes for about 55% of the total cell volume and about 75 minus to 95% of the cytosol. It consists of water. Cytosol also contain dissolved and suspended substance like ions, albumin, fat, lipid, ATP, waste material, glucose and protein. ठीक है स्टूडेंट्स. Organelles are the special structure present inside the cytoplasm and have a specific structure and functions. आगे है हमारा न्यूक्लियस. Nucleus is the largest organelle contained with a nuclear envelope. Most cells contain a nucleus except mature red blood cells. Some other cells have multiple nuclei such as skeletal muscles. There is a double layer membrane covering the nucleus called nuclear envelope, and pores present in the nuclear envelope are called nuclear pores. The nuclear pores help in transport of substance between the nucleus and cytoplasm. The spherical body present in the center of nucleus is the nucleus. The nucleus contains the genetic material of the body that directs all the metabolic activities of the cells. It consists of the 46 of the chromosomes, which are made from the deoxyribonucleic acid and DNA.
ये है न्यूक्लियस। आगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, हम इसको पावर हाउसेस भी बोलते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये बिल्कुल एक बहुत बढ़िया चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के लिए, जो हमारी पूरी होल बॉडी को एनर्जी देता है। हम उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are the powerhouse of the cell. They are involved in the aerobic respiration and process which chemical energy is made available in the cell. The mitochondria generate ATP through the chemical reaction. The number of varies depending on how active the cell is. ठीक है स्टूडेंट। The mitochondrial wall consists of the two membranes such as outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane. The outer mitochondrial membrane covers inner mitochondrial membrane from outside. The inner mitochondrial membrane has many including called curiosity, and curiosity increases the surface area for chemical reactions. The large area present at the center of the mitochondria is called the matrix. Matrix is the fluid-filled cavity present inner to the inner mitochondrial membrane. The wall of inner and outer mitochondrial membrane has the same structure as that of the wall of a plasma membrane. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा बॉडी का पावर हाउस होता है, जो मिलके प्रोसेस है इसका एरोबिक रेस्पिरेशन से लेके केमिकल एनर्जी को मीट करता अवेलेबल इन द सेल। तो जो जनरेट करता है एटीपी थ्रू केमिकल रिएक्शन, हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो आप इसको प्रॉपर वे में यहाँ तक कर लेना। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो रह गया राइबोसोम्स हम करेंगे, एंडोप्लाज्मा, हम इसको थॉरली रीड कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।